Today in Samvad, we are discussing the Asia crisis, the war in West Asia. And to discuss this, we have with us Lieutenant General Raj Shukla, former GOC A-Track, member Union Public Service Commission, and a renowned author. Welcome to Samvad, sir. थैंक यू वेरी मच। आपने याद किया दोबारा। होली की शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों। सर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर विल स्टार्ट ऑफ विद सर 100 hours. It's been nearly 100 hours since the first wave of attacks hit Iran. The top leadership, the supreme leader himself, Ayatollah Khamenei, they were taken out in the first few hours, I would say, of the hits. And the Americans have been all over, the Israelis have been all over, but somehow Iran has not backed off. 3 F-15 planes have been brought down, which the Americans say is because of friendly fire, and the Iranians claims on the contrary. They have regionalized the whole war, the Iranians. They have hit the Al Udeid air base in Qatar, taking out a very expensive radar system. They have hit Bahrain, Kuwait, all over the place, sir. So after 100 hours of this fighting, sir, how is the war placed according to you? देखिए, Trump and the United States, they seek regime change without getting into a forever war. अब जो ट्रम्प साहब का चुनावी नारा था, his campaign pledge was no regime change, no forever wars. तो ना सदाम हुसैन को हटाना है और ना ही वो 10-15 साल वाली जंग में फंसना है. That was his campaign promise. That is what the MAGA base, also talks of. But as they say that you campaign in poetry, but you govern in prose. Once he comes to power, he realizes कि भाई ईरान के साथ मसला क्या है. One is enrichment of uranium for the nuclear weapons, and secondly is the range of their ballistic missiles. क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा डर, the biggest scare they have is that nobody should have missiles, certainly not nuclear tipped missiles that can target mainland America, New York, Washington. That is the thing that they just don't want to have. And they have learned their lesson from the little rocket man, North Korea. He is the only man who has missiles and nuclear weapons. So उनके साथ ट्रम्प साहब नहीं उलझते. बाकी सबको ठीक करने में लगे रहते हैं. So if you want to keep the Americans in place, make sure you have missiles that can target their mainland, conventional, preferably nuclear tipped. Trump will not meddle. तो ईरान के साथ जब उन्होंने पिछली बार वो ऑब्लिटरेट किया था, जो उन्होंने क्लेम किया था नटान्स और फॉर्दो वगैरह में, बड़ा स्पष्ट है कि they have resumed uranium enrichment in a nearby complex called the Pickaxe Mountain. और इस बार वो उसको इतना गहरा कर रहे हैं so that it is out of the range of the B2s and the massive ordnance penetrators. इतना उसको गहरा कर रहे हैं. और ये उसको मान नहीं रहे थे बातचीत में आनाकानी, मतलब they were stalling, deceiving. That is what irritated Trump first. The second is that their missile range. देखिए अभी उनकी missiles are just good enough to target the 13 odd bases in West Asia. बड़ी मुश्किल से वो साइप्रस तक पहुंच पाए वो RF बेस तक. The Europeans are worried कि उसकी अगर रेंज बढ़ी, it will start, they will start threatening Berlin, Paris. अगली बार they can do Berlin, Paris, if they are good. And once again, the Iranians had started, because their satellite launches worried the Americans because the capability is similar or the technology is similar. So they said ballistic missile की जो आपकी ranges हैं, keep it short, so short that they can't even hit Israel. ये नेतन्याहू की मांग. अब ये दो मांग जो हैं, Iranians मान नहीं रहे थे और ट्रम्प साहब ने has decided that अगर if they have to submit to these two conditions, this regime must go. Then there may be some personal angst. This very regime has targeted him personally in an assassination attempt. पिछली बार जब वो repression हुआ और उन्होंने कहा that help is coming, help आई नहीं, और Western sources का कहना है 30,000 people dead, though the Iranians say 3,000. Now God knows what the truth is, but the repression was very severe. तो इस बार ट्रम्प साहब lost his patience. और जब ये बातचीत चल ही रही थी, मैंने सुना है वो, अगर आप वो ओमानी फॉरेन मिनिस्टर की बात सुने
तो कम से कम न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे ईरान मान गया था। दे सेड कि हम एनरिच भी नहीं करेंगे और अपनी स्टॉक पाइल को भी 5% से कम कर देंगे, और जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाउन ब्लेंड कर देंगे टू नॉर्मल यूरेनियम। बट वो मिसाइल्स पे कहीं बात अटकी, और तब इनको ये इंटेलिजेंस मिली कि साहब ये मीटिंग होने वाली है पस्तौर में। और उसी समय ट्रम्प साहब ने गो हेड दे दिया। मैंने सुना फ्राइडे को ही गो हेड दे दिया था, बट द मीटिंग गॉट पोस्टपोन्ड टू सैटरडे। अब दिस वाज आई थिंक अ वेरी जूसी टारगेट, 48 लीडर्स which could have been taken out, और वो नेगोशिएशंस मतलब देयर वाज नो क्लियर आंसर, और उसमें नेतन्याहू ने बात की होगी एंड ट्रम्प गेव द गो हेड। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। अब इसमें देखिए बात मसला क्या है। सो नाउ ही इज लुकिंग फॉर रेजीम चेंज बिकॉज टू प्रिवेंट ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड सैटेलाइट लॉन्च। अब ईरान ने क्या किया, ईरान के पास जवाबी कार्रवाई। अच्छा, दैट डिकैपिटेशन स्ट्राइक वाज वेरी सक्सेसफुल। 5 मिनट के अंदर 8:10 and 8:15 इजरायली टाइम में दे टुक आउट 48 लीडर्स। अभी देखिए ये मानना पड़ेगा ऑन द पार्ट ऑफ द IRGC ईरान, दिस इज लेस देन प्रोफेशनल, दिस इज क्लमजी। You can't have 48 of your top leaders assembling in a compound जिसकी इनके पास मतलब 3 साल की इमेजरी है। मिसाइल्स हैं, स्पैरो मिसाइल्स, आपको पता है कि दे आर ऑब्जर्विंग यू, यू विल नॉट इवन नो, दे स्ट्राइक यू फ्रॉम स्टैंड ऑफ रेंजेस, आपको पता भी नहीं लगेगा। और फिर भी आप ये करते हैं, और ओवर ग्राउंड में मीटिंग, ओवर ग्राउंड। This no meeting of such kind of top leadership in the near conflict situation should have been overground, सब underground होना चाहिए था। इन्होंने ये नहीं किया। And those 48, I mean, of course, उसमें बड़ी और इंटेलिजेंस थी, सर्वेलेंस, साइबर। मैंने सुना उन्होंने वो ट्रैफिक कैमरास भी हैक किए थे, उनको पता थी कि इनकी कॉन्वॉय कहाँ आती है, कहाँ जाती है। देखिए ये जो एक काबिलियत है ना, ये इजराइल और USA में ही हमको डेवलप करना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ लाइफ। तो मेरे को पता है पिछले 6 दिन आपकी क्या कार्यशैली रही और अगले 2 दिन आप क्या करेंगे। आई हैव अ ब्रॉड आइडिया एंड आई टेल माय इंट एजेंसीज कि भाई अगले 48 घंटे में माय स्ट्राइक एजेंसीज ये इनकी कार्रवाई हो। अब आप चूज करें पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इट सो सिंप्लीफाइज इट। और इनके जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सेलफोन लेके घूमते थे, सब जियो टैग थे। सो दे ब्रॉडली न्यू where these people were and they took them out. So the first wave was this decapitation wave. उसके बाद उनकी अब क्या उनका प्लान है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को निकालो और उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसको निकालो। अब देखिए हो क्या रहा है, इट्स नॉट सो सिंपल। आप सही कह रहे हैं, ईरान ने भी अच्छी जवाबी कार्रवाई की है। उससे पहले, in my view, the Americans have got air superiority, not air dominance, limited air superiority. तो किस तरह से ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे हैं, अनमैन्ड ड्रोन्स, वो इमेजरी डेटा दे रहे हैं, और इतनी जो पायलटेड एयर पावर जिससे स्ट्राइक हो रही है वो जो है इराकी एयर स्पेस और सऊदी एयर स्पेस से हो रही है। सो इट इज नॉट दैट दे आर ओवर द ईरानियन स्काइज। अभी वो उसमें नहीं, उस स्थिति में नहीं पहुंचे। एंड दे आर टेकिंग आउट द रेडार्स एंड द मिसाइल्स में लॉन्चर्स, स्टोरेज, साइलोज वगैरह वगैरह। और ईरान के पास ऑप्शंस क्या थे? दे कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर रिस्पांस टू इजराइल मैक्सिमम टू द 13 अमेरिकन एयर बेसेस। बट उन्होंने स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से ये घुमा दी है, दे वांट टू क्रिएट जियोपॉलिटिकल क्योस। सो क्या अमेज़न का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर मारा है, एयरपोर्ट्स, मॉल्स। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, अगर आप उनकी इमेजरी वगैरह देखें, दे हैव हिट सम रेडार्स, दे हैव हिट एयरफील्ड। तो ऐसा नहीं कि इनको नुकसान नहीं हुआ है। ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये जेट्स गिराए हैं, उसकी कहानी क्या है जी, कि अ ड्रोन केम एंड हिट अ टैक्टिकल सब ऑपरेशनल सेंटर इन कुवैत, और वो जो 6 अमेरिकन एक्स सर्विसमैन की हत्या हुई है उसी में हुई। अब जब वो हत्या हुई उनकी, सो दे वाज पैनिक, कुवैतीज वर ऑन द एज, और कुवैत का एक F-18 जहाज, कुवैती पायलटेड, वाज इन द एयर, और ग्राउंड से दे मस्ट हैव सेड, यू नो, स्टे ऑन अलर्ट, बट व्हेन यू आर ऑन एज, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और उस
उस जहाज ने ये 3 F-15 को उड़ाया है। अमेरिका ने कहानी क्या निकाली है, दैट वी हैव लॉस्ट 6 एक्स सर्विसमैन, पूरी कहानी नहीं बताई। वाई 6 एक्स सर्विसमैन? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। और ऐसे इनके बड़े नुकसान हुए हैं, कुछ थार्ड बैटरीज डिस्ट्रॉय हुई हैं ऑल ओवर। इनके जो सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स को मारा है, जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को मारा है, वहां पे भी कुछ नुकसान हुआ होगा, ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। सर ये सो कतर कतर वाला सर मैंने काफी ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है सर कि ये 5,000 किलोमीटर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की दे वर ट्रैकिंग दिस 5,000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स सो विद दिस थिंग टेकन आउट दिस रेडार टेकन आउट द थार्ड द पेट्रियट्स उनकी जो रेंज को इंटरसेप्शन टाइम हैज बीन रिड्यूस्ड सो दे आर हिटिंग मोर एंड मोर बिल्कुल, टारगेट्स बिल्कुल, they have also taken out 1 to 3 Radomes. Now Radomes can pick up missile launches from anywhere on earth. हम्म So their infrastructure has got degraded. उसकी डिटेल्स इतनी आनी नहीं, तो वो रेडोम्स ले लेंगे, आप थर्ड बैटरी ले लें। ये सब काफी इनको नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ है। 6 एक्स सर्विसमैन, नुकसान हुआ है। But the broader point of this geopolitical chaos is they want these allies to put pressure on the Americans कि साहब ये बंद करिए, क्या है। और जो डोमेस्टिक ओपिनियन है उस पर भी फर्क पड़ रहा है भाई। पीपल देयर आर क्वेश्चनिंग कि दिस वाज नॉट अ वॉर ऑफ चॉइस, देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट। वो कांग्रेस में भी ये बात हुई है। यस सर और जो बॉडी बैग्स, 6 बॉडी बैग्स पहुंचे हैं, अगर और बॉडी बैग्स पहुंचे, द बिगेस्ट रिस्ट्रेनर फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द बॉडी बैग्स बाय हिस्ट्री। आप देख लें वियतनाम वगैरह, तो मतलब वो भी है। बट देखिए, द मेन मसला क्या है, द डिसाइसिव मिलिट्री मैट्रिक विल बी व्हाट दे कॉल मिसाइल मैथ्स, मिसाइल मैथमेटिक्स। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं लिमिटेड, और इनके पास इंटरसेप्टर्स हैं लिमिटेड, पेट्रियट, थर्ड, एजिस वगैरह मिला के। हु विल रन आउट ऑफ देयर इन्वेंट्रीज फर्स्ट? ना उसके पीछे बड़ा गेमिंग है। सो द इरानियंस आर जस्ट फायरिंग ड्रोन्स इनिशियली, they want them to exhaust their interceptors. I'm told the rate now is 1:9. For every one drone being fired, these people are firing 9 interceptors. This maths will not last unless ये जो 2-3 हफ्ते हैं इसमें ये इनकी मिसाइल बैटरी निकाल दें, रडार निकाल दें, and if they get intimate control of the skies, अगर इनके जहाज जो हैं, they can fly over Tehran, Qom, Isfahan and all and not target them through drones. इंटीमेट अगर कंट्रोल मिल गया, देन इनका होप ये है। आज ट्रम्प साहब ने बात भी की है, वो जो 2 कर्ड्स की कर्दिस्तान के जो लीडर्स हैं, मसूद बरजानी और बफेल तलाबानी, तो साथ साथ मोसाद और सीआईए की कोशिश है कि अगर मिलिटरीली वी मैनेज टू डिस्ट्रॉय द इरानियन मिलिट्री एपरेटस, फिर ये कर्ड्स के साथ मिलकर, प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर, सो हम डिफेक्शंस करेंगे इनके ये जो मिलिट्री एपरेटस है। वो भी आसान नहीं है। देखिए, आईआरजीसी की संख्या 2 लाख है, बसीज पुलिस की संख्या 4 लाख है, उनकी जो नॉर्मल मिलिट्री है, रेगुलर मिलिट्री 8 लाख है, 1 मिलियन से ज्यादा है। अब उसमें ये फूट डाल पाएंगे, डिफेक्शन कर पाएंगे, इनका ये होप है। क्यों? क्योंकि साहब बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करना है। तो व्हाट सब्स्टिट्यूट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड? बिकॉज बूट्स ऑन द ग्राउंड से फॉरएवर वॉर होती है। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड सब्स्टिट्यूट होगा ये सीआईए, मोसाद, कर्ज, प्रोटेस्टर्स, अर्जेंसी। अब ये कल्पना है, ये कल्पना वास्तविकता में बदली होगी कि नहीं, सर दैट इज द बिलियन डॉलर। इसकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छी नहीं है सर कि विद इवन विद बूट्स ऑन द ग्राउंड इन इराक सर और सीरिया में तो अगेन नॉट बूट्स ऑन ग्राउंड जो जो टेंडेंसीज वहाँ डेवलप की सर कि आईसिस उससे निकली सारी रेडिकलाइजेशन जो रेडिकलिज्म बहुत बुरी तरफ से फैला बिकॉज उनको बूट्स ऑन ग्राउंड रखना नहीं था उनको कोई लोकल सपोर्ट लेकर के खड़ा करना था तो इसकी तो हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है तो ये बार बार इसकी सेम लूप क्यों होता है हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट इस बार देखिए लोगों का क्या मानना है, दैट Ayatollah Khomeini, the first Ayatollah, was popular. Ayatollah Khamenei, the second Ayatollah, was not popular, specifically because of the repression that he has done. Now, because of the repression that he has done, लोगों का अनुमान है कि इनकी जो बेस है, that is about 15, 20, 25%. जो बाकी इनसे नाराज हैं, for various reasons, sir, because of repression, women rights, human rights, और 47 साल का, there is also a reign which has been pretty repressive.
So because of that, ये अनुमान है, उपेक्षा है. It's a I won't say a dream, but it's an assessment कि भाई they will be able to turn it around. पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुए थे, they were homegrown. देखिए बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, इन्फ्लेशन, फॉलिंग करेंसी, देयर इज नो होप ऑफ लाइफ इन ईरान. अब ये दिस इज अ पॉलिटिकल गैम्बल between the intelligence that Trump and Netanyahu are getting from Mossad and CIA. In that sense, it is an unpopular regime. But आपका मानना सही है, even Saddam Hussein was very unpopular, but it went into chaos. So can they find a Delcy Rodriguez in Iran? और कुछ नहीं, कम से कम स्टेबिलिटी तो हो, वो मुश्किल लगता है बहुत. सर जो तो ट्रेडिशन उनका गैम्बल है उसमें तो मुश्किल है सर, जो ट्रेडिशन शिया ट्रेडिशन है वहां पे सर, उसमें तो मुश्किल जी. है कोई इस तरह से डेल्सी रॉड्रिक्स पाना। तो अगर ये नहीं हुआ तो ट्रम्प साहब को मैं जानता हूं, वो 3-4 हफ्ते बाद टैको कर जाएंगे. ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट. ही हैज नो कॉम, बट ही इज नॉट गोइंग टू फाइट अ फॉरएवर वॉर. 5-6 हफ्ते के बाद, इफ ही सीज दैट द मिलिट्री टाइड इज नॉट टर्निंग, ही विल ऑफ रैंप. ही सर विल से कुछ भी क्लेम कर लो. सर ये तो एक ऐसी सिचुएशन हुई सर कि ईरान का टोटल जो अभी तक का उनका एक जिसको कहीं स्ट्रेटेजी रही है कि दे वांट यूएस आउट ऑफ द रीजन। तो अगर यूएस यहाँ से बैक ऑफ करता है सर, अब तो ये बैक ऑफ, अगर अगर इट कम्स टू दैट सर, बैक ऑफ करता है। It will not back off from the region, it will back off from this conflict, सर not from बट the देन region. आपकी क्रेडिबिलिटी जो होती है सर इन योर एलाई सर, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कि आई मीन यू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट, यू डू नॉट, यू इनिशिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बट यू डू नॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट, इवन इजराइल सर। तो इनकी सिचुएशन फिर क्या हो जाएगी सर वहां पे? So आप ये सारी allies से पूछिए, if they have to choose between USA and Iran, whom will they choose? They will choose USA always. वो तो थोड़ी प्रॉब्लम ही अरब वर्ल्ड की है ये. There is no unity. For whatever their internal contradictions, if they have to make a choice, I have no doubt they will choose the USA. हम्म सर ये जो ईरान का इस बार आप इन दे हैव डन वेल टिल नाउ, जो हम लोग भी पढ़ रहे हैं सर, व्हाट वी आर गेटिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड, डू यू सी दैट द चाइनीज हैड हेल्प्ड देम कम टू दिस स्टेज? क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी उनके पास काफी है, और क्योंकि अभी जुलाई में ही सर दे टुक अ मैसिव हिट, उसके बाद इतनी जल्दी रिकवरी करना, सो आपको कहीं चाइनीज इन्फ्लुएंस इसमें दिखाई दे रहा है, और इज इट रीडिंग टू मच इनटू द रिस्पॉन्स? Yeah, I'm not too sure. If Russia and China had to come to the rescue of Iran, why is it that Iran has only S-300s and not S-400s? सर रशिया Why खुद not बिजी है many? सर, मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेगा रशिया खुद यूक्रेन में बिजी है। नहीं, यूक्रेन में बिजी है, बट हम भी तो ले रहे हैं S-400 उनसे. हम खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? जी So I'm saying that Russia and China, agar if crick is a reality, China, Russia, Iran, North Korea, then China and Russia have not done enough. हम्म That आपको मानना पड़ेगा. Does US do more for Israel than Russia and China have done for Iran? That is the fact. जी और दूसरा देखिए, ये इस रजीम को भी 47 साल हो गए. If you are not in a position to take on America militarily, why keep doing this debt to America, debt to America? अरे पहले अपनी कैपेसिटीज बढ़ाइए. एग्जैक्टली। So the lesson is this, Mayank, that please value, respect your instrument of force. Don't get into geopolitical fights if your instrument of force is not in good health. हम्म अपने शस्त्र का आदर करिए, तभी आपकी बाकी जियोपॉलिटिक्स चलेगी. खोमेनी साहब की भी जियोपॉलिटिक्स तब चलेगी when your, अब ये जो IRGC है, it's an ideological military. It's not a professional military. ट्रू। तो अब ये सब चीजों का आकलन करना पड़ेगा. The Americans and the Israelis, at least on current evidence, absolute resolve and epic fury, they have done rather well. अब देखिए आप ये इसका लगाइए, what if World War II में on the very first day Patton had been killed, Montgomery had been killed, Churchill had been killed? क्या होता World War II? In our case 71, I'm not saying it that way. What if by some quirk of fate we had lost the prime minister or Sam Manekshaw? It is something like that. You have to give it to these people. Only when you give it to these people will you be able to create these capacities yourself. जी If you have to be strategically autonomous, invest in your instrument of force. You cannot be strategically autonomous if you don't invest in your instrument of force.
अब ये जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हैं, इसमें 30 साल की मेहनत है इंटेलिजेंस की. इंटेलिजेंस कैनॉट बी एन एक्सेसरी, इट इज अ फाउंडेशन. जो पैटर्न ऑफ लाइफ के मैंने बात की, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूज, एनी वैल्यूज. If you don't invest in the instrument of force, you will end up yielding to your opponent's values. So this is very important. If you are standing up to America, then build alliances, build your capacities. अब देखिए, Russia has a mutual defense, some kind of treaty or something with the Iranians. What happened? कुछ नहीं किया उन्होंने. Sweet nothings. Condemn कर दिया, ये कर दिया, उससे जंग थोड़ी ना लड़ी जाती. अब ये जो आकलन इनका था, दिस वाज नॉट एक्यूरेट. एंड मेरा ये मानना है, द रियल जीनियस बिहाइंड द इरानियन रेवोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक जीनियस, वाज कासिम सुलेमानी. जिस दिन से कासिम सुलेमानी को इन्होंने निकाला है, इनकी सारी ये जो स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, he actually built that whole strategy from the Iranian point of view of putting pressure on Iran through these proxies. और जब तक वो जिंदा थे, there was some deep strategic thought and action. अभी देखिए, I'm not critiquing them unnecessarily. They have caused a lot of damage. But अगर इनको 1-1.5 साल हो गया from the last time they were struck, you again go and expose your leadership like this. भाई नौसिखिए तो नहीं हो सकते आप. I don't blame the leadership. I blame the military. It is your job to keep your leadership secure. मे बी कोई डेल्सी रोड्रिग्स थी सर, जिनके बारे में बाद में पता चलेगा. मे बी वी कैन नेवर बी श्योर. नेवर नहीं, बिल्कुल हैं. अरे यहाँ तो पक्का, यू कैनॉट डू दिस विदाउट डीप पेनिट्रेशन. जी. एंड दैट इज द अदर पॉइंट. हाउ कम यू आर सो डीपली पेनिट्रेटेड? यस सर. व्हेन यू हैव सच क्राइसिस, वो भी इजराइल के साथ, यार, यू कांट टेक इजराइल लाइटली. सर जब ये सारा मैं देखता हूं सर, कई बार लगता है कि अमेरिकन टैक्टिक्स सर टैक्टिकली ब्रिलियंट नजर आते हैं सर. कई बार स्ट्रेटेजिकली सर मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क रहते हैं सर. तो ये अपना असेसमेंट है सर. आई माइट बी रॉन्ग. यू कैन थ्रो मोर लाइट ऑन दिस. I have raised a very good point, so you must answer this. If you were president, if you were president of the United States, जी, and you are being told every day that Iran is getting to nuclear weapons, they are getting to missiles which will come and hit you. You can wait for 3 years or you can take them out today. What would you have done? सर ऑब्वियसली आई वुड टेक देम आउट टुडे. तो उनके नजरिए से आप देखें. पर सर सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी कि स्ट्रेटेजिकली में कुछ एंड गेम्स तो होंगे ना सर. व्हाट एग्जैक्टली इज द एंड गेम? यू डोंट वांट boots on ground. You want regime change. You want complete disarmament from the very beginning. It was never going to happen. तो संभव ही नहीं था सर, कभी भी नहीं था. और मतलब कई फ्रंट हम खोल ले रहे हैं सर एक साथ. पूरी रीजन को, जिसको कहिए कि पूरा रीजन डिस्टर्ब है, दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब होने जा रही है. इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था सर कि एंड गेम क्या है. सारी सोच के पीछे कुछ तो होगा सर, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा. ऑब्जेक्टिव मैं So let me just bat for Trump. I'm batting for Trump deliberately for a while. I'm play acting. 2 साल से ट्रम्प साहब बार बार कह रहे थे ईरान को कि भाई मान जाइए, you will not get nuclear weapons, बस, and missiles. I remember many times he was saying Iran is a great country, we can have a great relationship, they have great resources. बार. बट ये 2 मसले थे जिस पे नहीं मान रहे थे. अगर मैं ईरान में होता and I don't have capacities, military capacities, I would have played along for a while. भाई build your other capacities. Sanctions हटाते, और कोशिश भी यही कर रहे थे negotiations के through. So at least nuclear weapons I may have given in for a while. Not missiles, but nuclear weapons. Anyway, international politics is not about right or wrong. Ultimately, it's about clashes. There is no arbiter in the system. Power is the arbiter. हकीकत ये है. अब आप देखें, you see, our political leadership has been so wise. We have got to a nuclear weapon while still staying in the mainstream geopolitics of the world. It's a remarkable achievement. It's a remarkable achievement. Sanctions वगैरह हमने झेल झाल के, we have got that.
तो हमने, our statecraft has shown great wisdom. Now in this phase we have begun a national security makeover. We must complete it. But this is a long way to go. अभी आप देखिए, आप एडी, मैं कहता हूं दो तीन चीजें को हमको इमीडिएटली करनी चाहिए. One is we must move from territorial security to what I call homeland security. Secure our cities, secure our business infrastructure, secure our energy infrastructure. और वहां the game has to move to high energy lasers, microwaves, long range discrimination radars. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं. देखिए आप, अमेरिका क्या करता है, कितने भी बुरे हों ट्रम्प साहब, गोल्डन डोम $3.5 ट्रिलियन 28-29, ताकि कोई किसी भी मिसाइल, क्रूज, बैलिस्टिक, ड्रोन, अमेरिका सुरक्षित रहेगा. दो तरफ से वो सुरक्षित है, समुद्र की वजह से और होमलैंड सिक्योरिटी, गोल्डन डोम. आप देखिए यूक्रेन में अलोंग 1,000 किलोमीटर फ्रंटियर, AI enabled command and control drones के जरिए they have made them these lethal frontiers. अगर कोई इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर की हरकत होती है, 5 to 6 minutes it is taken out. Why can't we create these lethal frontiers along our LAC and LC? ये lethal frontiers और ऑटोमेटेड एयर डिफेंस और ड्रोन मिसाइल फोर्स, हमको भी सुदर्शन चक्र मिल गया जिसकी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं. इन चीजों में हमारी जो कार्य शैली की जो गति है वो धीमी है. So we have to do it. Isn't it quite evident in our case also? जी सर. तो हमको कम से कम, हम मजा ले रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं दूसरों की कैसी मिसाइल्स दागी जा रही है इधर उधर, हम पे भी दागी जा सकती जी. So this time we must use for this. And if we do this, we will be autonomous. If we do this, then we can preach to the world. अगर आप ये नहीं करेंगे, ultimately when push comes to shove, ये तो पुरानी मतलब सीख है. In the international system, there is no right or wrong. There is only power. स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे कि the world is a gymnasium where nations come to make themselves strong. अखाड़ा है ये दुनिया का, कुश्ती करना आना चाहिए जी. तो ये है. So this is how I read this situation. The challenge for Trump and his statecraft is, can he do regime change without getting into a forever war? 5-6 हफ्तों में वो क्या कर पाएंगे, देखना ये. सर, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो आपने बात कही, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उनकी पॉलिसी थी जिसको उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्रिन कहा, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल डिफेंस पॉलिसी, जिसमें दी आइडिया कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को सिक्योर करेंगे और मे बी, ये लिखा तो नहीं था, मे बी पिवट करेंगे फिर से इंडो पैसिफिक की ओर. बट सडनली वो वेस्ट एशिया की ओर पिवट करते हैं सर. एंड एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ऑब्वियसली कि व्हाट इफ ही गेट्स स्टक इन दैट प्लेस सर, क्योंकि वॉर तो स्टार्ट इनिशिएट करना तो अपने हाथ में, एंड करना पता नहीं कितने अपने हाथ में होता है. सो व्हाट इज, वेयर डज दिस लीड द डॉनरो डॉक्ट्रिन टू? तो देखिए, फर्स्टली द ऑफिशियल कैरेक्टराइजेशन इज नॉट डॉनरो, it is the Trump corollary to the Monroe Doctrine. Yes, sir. And the Monroe Doctrine was that Europe, you have no place in America, in our backyard. फिर उसकी एक रूजवेल्ट corollary थी. जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उन्होंने कहा कि not only will the Europeans not come, within the Western Hemisphere, जितने भी राष्ट्र हमारे आसपास हैं, they will play to our tune. This is very significant. कि अगर आप हमारे neighbor hai, you will play to our tune. So the Western Hemisphere is the American Hemisphere. तो जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है वो भी ये कह रही है कि साहब, यूरोप आप तो यहाँ के आएंगे, आप अपने आप को सुरक्षित कर दीजिए, because things have changed. But in our periphery there will be no Chinese influence, there will be no Russian influence. ये नहीं कि भाई ग्रीनलैंड जो है वहां, और ग्रीनलैंड, आर्कटिक वगैरह में रशियंस, चाइनीज, उनकी मिसाइल्स, एडी सिस्टम्स, ये हमारा इलाका है. ग्रीनलैंड, मेक अप योर माइंड, गिव अस फुल एक्सेस. पनामा कैनाल की एक कहानी है कि भाई इट कैन नॉट बी चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स. पनामा कैनाल इट विल बी इन आवर हैंड्स. और वेनेजुएला में उन्होंने करके ये मैसेज दे दिया सबको कि भाई, इफ यू
in the Western Hemisphere. Please know that who is the big daddy here. जब वो 52nd स्टेट कहते हैं कार्नी को, मतलब वो करेंगे नहीं, बस उनको कैसे समझाते रहते हैं कि आपकी हैसियत 51st सेकंड स्टेट की है, स्टे देयर. If you go into history, 18th, 19th century में, when America was actually stabilizing its periphery, it was far more aggressive than what China is doing. China ने तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया periphery में. So Americans have always used military power far more than any other country in the world to stabilize their periphery. दूसरी, अभी आप वो स्ट्रेटेजी को पढ़े देखिए. ट्रम्प इज नॉट अ मैन ऑफ रिटन स्ट्रेटेजी. उनका माई हंच अबाउट हिम इसकी स्ट्रेटेजी ठीक है, लिख विक लो, बाद में करूंगा मैं जो चाहता हूं. कॉमन सेंस, अगर उस कॉमन सेंस स्ट्रेटेजी के साथ है बढ़िया, नहीं तो मैं करूंगा. नाउ सो देयर इज अ स्ट्रेटेजी एंड देन वी टॉक ऑफ कॉमन सेंस. तो स्ट्रेटेजी में भी ये स्पष्ट है. उनका ये मानना है कि देखो, यूरोप का पतन हुआ बिकॉज यू लेट इमिग्रेंट्स इन. राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, उनका ही मानना है. देयरफॉर मार्को रूबियो टॉक्स ऑफ रीजुविनेटिंग द वेस्ट. यूरोप और यूएस से मल के वी मस्ट रीजुविनेट द वेस्ट, डोंट लेट इमिग्रेंट्स कम. ये सब आप मत करिए, सिक्योर योर बॉर्डर्स. और इफ यू आर ए $21 ट्रिलियन इकोनॉमी, प्लीज स्पेंड ऑन योर डिफेंस. ये क्या कि भाई आपका डिफेंस का खर्चा हम उठाएं. अब देखिए यूरोप की एक्चुअल स्टोरी क्या थी. यूरोप की स्टोरी थी कि हमारा रक्षा खर्च तो यूएसए उठा रहा है, तो जो हमारे पास पैसा है उसको हम लगाएं सोशल स्पेंडिंग वगैरह. तो आप सोशल स्पेंडिंग कर रहे हैं. वहां अमेरिका में जो वर्कर है, इन ट्रम्प्स व्यू ही वाज नेग्लेक्टेड. अमेरिकन सोसाइटी had got de-industrialized. If you go into the depths of the American economy, they say the bottom 50% their incomes have risen over the last 30 years. तो वहां मसले हैं इन सब चीजों के. So that is now he's telling Europe कि भाई आप रक्षा खर्च उठाएं, हम आपका रक्षा खर्च नहीं उठाते to take care of Russia. और इसका एक और पहलू है उनकी, जो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि the basis of American power is no hegemon in any other theater. तो रशिया का मुकाबला करेगा यूरोप. यहाँ ईरान बढ़ रहा है हेजमन, इजराइल के साथ मिलके हम इसको ठीक कर देंगे. और एशिया में we will not allow China to become the hegemon. पैसिफिक में हम उसका मुकाबला करेंगे, जापान को प्रॉप अप करेंगे, कोरिया को प्रॉप अप करेंगे, इंडिया से उम्मीद रखेंगे. No hegemon in Asia. If you ask me, that is the ultimate objective. That is the Trump design. The first American president to take on the Chinese openly in 2017 was not Barack Obama, not Ronald Reagan, but Donald Trump. He called them out over tariffs. He called them out over trade. So the ultimate design of the Donroe Doctrine is China. No hegemon in Asia. और ईरान को भी ठीक करना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने आपके दूसरे शो पे बात किया, भाई उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं which when mounted on a ballistic missile can threaten mainland USA. तो उसको ठीक करना जरूरी है. But the ultimate game is China. वहां आप देखें ताइवान को, उन्होंने he has given them approved their arms sales. He has got Takaichi in. He's very fond of Takaichi. Takaichi has said promised to double defense expenditure. कोरिया को प्रॉप अप कर रहे हो. और आप देखें जितना अमेरिकन मिलिट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया. $1.5 ट्रिलियन का बजट दिया है टू रिसोर्स पावर, टू स्प्रेड इट अराउंड दीज 800 बेसिस. आप एक चीज पे गौर करें, लुक एट अमेरिकन मिलिट्री पावर इन एब्सोल्यूट रिजॉल्व टू टेक आउट वेनेजुएला. अब उसमें कुछ लक वगैरह होगा, बट इट वाज अ मार्वेलस मिलिट्री ऑपरेशन. आप पॉलिटिक्स छोड़ दें. Now to replicate that same military power 4,000 kilometers away around Iran is not easy. आप सोचें जरा इसको. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, कितनी मिसाइल्स, कितनी वॉरशिप्स, उनका कमांड एंड कंट्रोल, उनका एडी, जिसे कहते हैं पावर प्रोजेक्शन. ये पावर प्रोजेक्शन चीन को करने में 40 साल लगेंगे, 30 से 40 साल. So China can fight a near game. It has no ability at this time to project power beyond it. Cannot fight any distant game. The only military which can contest hegemons in faraway theaters is
यूएसए पावर प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं, वो और काबिलियत किसी में है भी नहीं. सो डॉनरो डॉक्ट्रिन इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर फर्म बेस. यूरोप में रशिया को किया उन्होंने यूरोप के हवाले. वेस्ट एशिया में नोबडी एल्स बट अस. देखिए उन्होंने धीरे धीरे करके रशिया को सीरिया से निकाला है, रशियन इन्फ्लुएंस लेबनान से निकाला है, टर्की वगैरह के साथ साथ. किसिंगर की सबसे बड़ी देन ये थी 1970s में, that he took out Russian influence from West Asia. That was one of his biggest victories, perhaps his contribution greater than the Cold War. रशियन इन्फ्लुएंस को या सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को निकाला था वेस्ट एशिया से. फिर वो दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा था सीरिया वगैरह से, फिर निकाला है. एंड द फाइनल आर्ग्यूमेंट, एज आई से, विल बी सेटल्ड इन द फर्स्ट आइलैंड चेन. आप हिस्ट्री लेगेसी वगैरह छोड़ दें कि भाई ताइवान उनका हिस्सा है कि नहीं उनका. द बिगेस्ट फियर इज, एज आई सेड, the moment the Chinese Navy breaks out of the first island chain, that naval power will land on the shores of Los Angeles. वो इसको नहीं होने देंगे. Therefore, the first island chain, second island chain, third island chain, this is their statecraft. अब उसमें वो जानते हैं कि वो पीछे पड़ गए, वो पीछे हो गए इनोवेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के क्षेत्र में. तो ये जो जितनी कार्रवाई हो रही है, अमेरिका फर्स्ट, रीबिल्डिंग अमेरिका, ये सब हो रहा है साथ में मिलिट्री पावर. बट इफ यू एक्चुअली आस्क मी, और ये जो इनका खेल है ना कि ओनली नो हेजेमन इन एशिया, दैट इंक्रीजेस इंडिया सेलियंस. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज वेरी स्ट्रेटेजिकली ऑटोनमस. हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं. इससे ट्रम्प साहब चिढ़ रहे हैं, तभी वो जो बात हुई थी पूरा ट्रेड वेट के चक्कर में. बट ही नोज इंडियाज यूटिलिटी. If China has to be checkmated, it has to be Japan, South Korea, India, USA के साथ. So this is the big game. The end game is China. ट्रम्प, देखिए ट्रम्प पढ़ते लिखते नहीं ज्यादा, लेकिन बेवकूफ नहीं है. He's what they say, a very street smart guy. उनके पहले टेन्योर में उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जनरल मैकमास्टर, उन्होंने किताब लिखी है. ह्यूमरसली उस किताब का पहला चैप्टर है यू आर हायर्ड, सेकेंड चैप्टर इज यू आर फायर्ड. बट उसमें वो मैकमास्टर लिखते हैं कि जब भी ट्रम्प बाहर जाते थे तो उनके वो लंबे मोटे मोटे ब्रीफ्स होते हैं प्रेसिडेंट के लिए. he said he had no patience to read those briefs. He would just call me and tell me about this country, what is our trade surplus, and how much does the country spend on defense. So he looks at the world through trade, tariffs as an instrument of security policy, and defense. So at the heart of the Dondor Doctrine is tariffs as a security instrument, defense to underwrite the dollar, to get the economy going, reindustrialize. उनका तो लंबा सपना ये है कि टैरिफ से हम इतना कमाएंगे कि इनकम टैक्स एबॉलिश कर देंगे. मागा साहब, मागा डॉक्ट्रिन ये है, इतना हम कमाएंगे टैरिफ से that we will abolish income tax. अब वो हकीकत में तब्दील होगी कि नहीं, ये जो सपना है अलग बात है. But he looks at the world in this very realistic frame. ये जो लोगों ने का मानना है that he's only bothered about the Western Hemisphere, that is a very, shall I say, suboptimal understanding of the Dondor Doctrine, of the national security strategy and the national defense strategy. If you really want to understand the defense strategy, you must read Elbridge Colby, जो उनके Under Secretary of Defense for Policy हैं. Very sharp mind. Read his remarks in Seoul and in Europe, where he has explained all this. What is the Dondor Doctrine? उसमें बड़ा स्पष्ट है जो मैं कह रहा हूं आपको. How this is the plan of the Americans to maintain what they call a rule-based order. Rule-based order मतलब American order, American hegemony वाला order on our terms. No hegemon anywhere. Europe, रशिया यूरोप के हवाले, वेस्ट एशिया ईरान जैसे देश नहीं आएंगे. एब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए अरब वर्ल्ड और इजराइल को हम साथ करेंगे. गाजा में अगर हमने शांति बहाल की तो हम यूएन को भी डिस्प्लेस करके वी विल बिकम द आर्बिटर्स ऑफ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर गाजा सफल हुआ, गाजा क्या है, वो पीस बोर्ड, तो इट्स गोइंग टू बिकम अ ग्लोबल मॉडल. अब सफल होगा कि नहीं अलग बात है. और अल्टीमेटली द लॉन्ग गेम इज विद चाइना. चीन के साथ है उनकी जो असली प्रतिस्पर्धा है चीन के साथ है.
As I say, the final argument, the Dondo Doctrine's final argument will be settled in Asia. मैं सर यहीं से इसको इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा आगे ले जाऊंगा सर। आपने कहा कि द फाइनल आर्ग्यूमेंट विल बी इन द इंडो पैसिफिक। सर अगर इफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सर, अगर मैं कहूं कि सर अगर मैं चाइना में होता एंड आई वाज अ डिक्टेटर एन ऑटोक्रेट, और मैं देखता कि मेरा जो प्रतिस्पर्धी है सर, जो कॉम्पिटिटर है, इज engaged elsewhere and the probability is that he is not going to get free very soon. What if I make a move, made a move on Taiwan? अगर मैं इस समय ताइवान पे मूव करता सर, फर्स्ट आइलैंड चेंज का डिफेंस, सर ये सारा जो सिस्टम है ये कहीं ब्रेक अपार्ट नहीं कर जाएगा सर अपने आप? क्योंकि आपके पास, आप यूक्रेन में भी उनको भी सप्लाई कर रहे हो, आप इसराइल को भी सप्लाई कर रहे हो, आप अपने, अब तो गल्फ में उन्होंने रीजनल करके वॉर को, उन नेशंस की भी सप्लाई अब बढ़ जाएगी, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो डिफेंसिव फोर्सेस होंगी सर, अमेरिकन फोर्सेस होंगी, उनके एलाइज की फोर्सेस होंगी, उनकी सिचुएशन फिर क्या रहेगी यहाँ पे? तो आप देखें, फर्स्ट टैलेंट चेन में जो है वो जो डेटरेंस इक्वेशन है, इट इज नाउ फर्मली इन चाइनाज फेवर, देयर इज नो जी। डाउट अबाउट दैट, फर्मली इन चाइनाज फेवर। बट मेरा ये मानना है, ये देखिए जी साहब कैसे देख रहे हैं दुनिया को। फर्स्टली, उनका एक ये अनुमान है कि शायद ताइवान में मिलिट्री एक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी कैपेसिटी बढ़ा दो वहां पे। हम्म। और फिर ट्रम्प साहब से पूछो कि साहब देखिए ताइवान हमारा है, इसको आप छोड़ दें। डू यू वांट टू फाइट ओवर ताइवान? ताइवान आपसे कितना दूर है? दिस कैन बी द बेसिस ऑफ अ जी टू। हम्म। क्रिएट सो मच कैपेसिटी एंड देन आस्क द क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कैसे? 2022 में जब वो एक्सरसाइजेस करते थे तो 2 ब्रिगेड लगाते थे, आज 42 ब्रिगेड लगा रहे हैं। हम्म। 2022 में जब एक्सरसाइजेस करते थे तो एम्फिबियस फोर्स का 1/3 हिस्सा डिप्लॉय होता था, आज 2/3 डिप्लॉय होता है। एक समय था जब, आप पुरानी क्राइसिस देख लें, 95 96 की, 1950 58, जहां चीन ने ताइवान पे कोई हरकत शुरू की, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाते थे। आज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हिम्मत नहीं है कि वहां आए, क्योंकि चाइनीज मिसाइल्स हैं। हम्म। अब एडमिरल पपारो क्या कह रहे हैं आईपीकॉम की, हेल्थस्केप ऑटोनमस सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं आएंगे। सो द इक्वेशन इज चेंजिंग। इफ आई एम जी, आई विल से सच कैपेसिटी। और हम्म। फिर मैं ट्रम्प साहब से कहूंगा, वाई फाइट ओवर ताइवान, लेट्स डू अ डील। हम्म। और आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी में हम आपसे आगे हैं, एआई को छोड़ के। स्टील में 20 टाइम्स हमारी लीड है, सीमेंट में 11 टाइम्स, ईवी हमने कैप्चर किया है पूरा। वी आर नॉट सोवियत यूनियन। हम्म। आप हमसे क्या लड़ना चाहते हैं? क्यों दुनिया बर्बाद कर रहे हैं? सो सेटल ऑन दीज आर्ग्यूमेंट्स। दूसरी बात, इट्स नॉट दैट ही इज टोटली अबैंडन द इंस्ट्रूमेंट। वो तो अपने जनरल से परेशान है। ये जो 100 जनरल सैक हुए हैं, क्यों सैक हुए? करप्शन, सारे करप्शन वाले नहीं है, आधे इसमें वो है जो कह रहे हैं हम ताइवान नहीं कर सकते। हम्म। जी कह रहे हैं मैं आपके पीछे 12 साल से खड़ा हूं, इतना आपका डिफेंस बजट है और आप ताइवान नहीं कर सकते। सो ही हैज हिज ओन फ्रस्ट्रेशंस। When out of the 7 theater commanders, all 7 have been sacked, what will he do Taiwan? हम्म। तो अगर विंडो मिला भी तो क्या करेंगे? जी। और तीसरा लोगों को मानना है, जी साहब का गैम्बल ये है, देखिए, ही इज होपिंग फॉर अ 4th term legacy. So is it wiser to do Taiwan now and risk your 4th term, or get into your 4th term and then do Taiwan? और तब तक उन्होंने ये जो सैक किया है सीएमसी वगैरह में, ये जैनजूजिया वगैरह को, he wants a CMC total of his own, हम्म। his power firmly there. Then pose this question to Trump, and if Trump doesn't listen, then try and do something. So he's in no hurry to do Taiwan. It's not that he will ever give up Taiwan. हम्म। So 4th term, and if you do Taiwan, then your legacy is greater than Mao. ट्रू सर। अभी ट्रम्प साहब का, मेरा ये मान है, मेरा अपना आकलन है, and I may be wrong, but when I read around and I see, now this is how I think the whole game is working. सर एक आखिरी प्रश्न सर, फिर हम ईरान की ओर ही चलेंगे, वेस्ट एशिया की ओर। जी जी। और मैं आपसे कहूँ टू डॉन योर स्ट्रेटेजिक एस्ट्रोलॉजर हैट सर, गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या नजर आता है आपको सर? क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है? देखिए, 2 बड़े स्पष्ट ऑप्शंस मेरे को दिखते हैं। जी। One is that the Iranian military gets overwhelmed.
Overwhelmed in the sense that the skies are in the control of Israel and USA. So without putting boots on ground, if the skies are my control, I can send some airstrikes to take out this IRGC headquarters. Relentless bombing. That may destroy their will. और जब ये होने लगेगा, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको संकेत मिलेंगे कि नहीं अब so that is the will be one turning point. The second turning point is that even if that happens and some defections take place, Iran may go into a civil war. Civil war between the IRGC and those who are opposed to them. Now that civil war will have to be settled by the Iranians. Usme America and Israel will only assist from outside. But if they get into the civil war situation, कम से कम ये तो इनको assured दोनों को Israel और USA will get assured of one thing कि भाई आपस में लड़ेंगे, there will be blood, but there will be no nuclear weapons and there will be no ballistic missiles. The third option could be that देखिए Iranians, as you yourself were saying, जो Shia culture है, Iranian nationalism है, अगर Iranians may be annoyed with the regime, but when Americans do too much, nationalism may unite against the Americans. That is where they perhaps are distinct from the Venezuelans. And the last option could be that Americans run out of interceptors, body bags ज़्यादा बढ़ जाए, and America is forced to retreat off ramp. But either way, I think major combat operations will cease by 5 to 6, 7 weeks. Trump is not going into a forever war. Oh, no, democracy, institution building, वो सब शायद वो ना करें. अगर वो last bit करना है, he'll hand it over to Netanyahu. But he is not going to do it. तो ये सब एस्ट्रोलॉजी तो कर ही नहीं सकते, ये आकलन है, कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं. But that is what makes geopolitics so fascinating because it is so unpredictable. पीट हेगसेथ ने भी यही कहा है सर कि वी आर नॉट गोइंग इनटू नेशन बिल्डिंग और इन सब चीजों में हम नहीं पड़ने वाले हैं. अब हम पहले वो लोग करते थे and they used to believe in it. जी, पेट्रियस वगैरह साहब थे, जनरल पेट्रियस वगैरह. So their whole thought was that we can rebuild Afghanistan into a democracy. We can rebuild Iraq into a democracy. Now that was a fatal flaw. Afghanistan आज तक democracy नहीं बना वो. तो वो जो hubris थी वो अमेरिका की चली गई है. कल्चर भी वो कह रहे देखिए न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए, उसके लिए अगर जंग हो, क्योस हो, हम बर्दाश्त कर लेंगे. These are the bottom line. Regime change हो गया, बढ़िया. So it has to be seen in that sense. When people ask these binary questions, regime change or no, they are not wise questions. It is like, this is how they are, imagining. अच्छा भाई, America is a democracy. His poll numbers are dwindling. Inflation is going up. जितना उनका उम्मीद था टैरिफ वगैरह से, उससे पैसा नहीं आया इतना. So domestically, जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस, अभी जो 3, 4, 5, 6 इलेक्शंस हुए हैं ट्रम्प साहब, he has lost all of them. The Republicans have lost all of them. सुप्रीम कोर्ट भी हावी हो रहा है. अभी ये जो इन्होंने एपिक फ्यूरी है, this is also being challenged in the Supreme Court. But you didn't go to Congress. So democracy भी ये सारे बड़े मसले. But Trump is willing to fight all this because आप ट्रम्प का बैकग्राउंड देखें. He started these things. Whether you agree with him or not, against wokeism, against this whole business of forever wars, democracy, calling out China, and he has been persecuted like hell. He was framed. Now, when he has come back to power, I think he actually believes that he is a man of destiny. जब इतना कुछ उन्होंने झेल लिया, so he is really not bothered about the opposition. He has his beliefs, right or wrong. So this doctrine, and last point I'd like to make, कि coincidentally, Netanyahu and Trump both are outliers in a very status quo universe. हम जैसे लोग हैं ना, आप जैसे हम आकलन करेंगे, प्रोज कॉन, ये दोनों जो हैं इस टाइप के नहीं है. And currently they seem to be winning because status quoism is slow. और ये जो outliers हैं, the risks that they are prepared to take,
आप, if you go into the depth, Trump has really sorting out the American defense system. He has no patience with procurement time, ये वो बड़े गेम चेंजिंग उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं वहां पे. वो लोग they don't see that. So in some ways he is a very different. स्पेस कमांड आप ले लें, ओबामा हैड सेड स्पेस कमांड की जरूरत ही नहीं है. ट्रम्प केम एंड रिस्टोर्ड द स्पेस कमांड. अब ये चीजें जो है ना, दे कम फ्रॉम दीज पर्सनालिटीज, राइट और रॉन्ग. सो ट्रम्प इज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. God knows how he will go down in history, but at least contemporary global geopolitics will not forget that there came a man like Donald Trump. Complete disruptor, sir. तो इसी पे कंक्लूड किया जाए सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने समय के लिए और अपने विचारों को हमसे शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.